Now let us start with another very important topic, and this is a topic from where the question is always asked, be it your CU SAT exam or be it CSIR NET exam और कोई भी MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें केमिस्ट्री आती है, वो सब एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक में से क्वेश्चन 100% आता ही आता है. नाउ लेट अस सी VSEPR थ्योरी. नाउ VSEPR थ्योरी एज अ नेम सेज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी. उसका मतलब क्या है कि दैट दिस थ्योरी डील्स विद द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स. अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं इनमें कैसे रिपल्जन हो रहा है, दैट रिपल्जन डिसाइड्स द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ एनी मॉलिक्यूल. सो दिस इज व्हाट वी स्टडी इन VSEPR theory. Initially this theory was given by Sidgwick and Powell, but this theory was later on developed by Nyholm and Gillespie. And the main postulates of these theories are, first point is that the arrangement and the repulsions between the electron pairs present in the valence shell of the central atom decides the geometry and shape of molecule. For example, I take a very simple example of CH4. So you must have seen in case of the CH4, if I write the valence electron, carbon has 4 valence electrons and these are shared with 4 electrons of hydrogen. So this is how a methane molecule is formed. So if you see here that how these electron pairs are arranged around the central atom, this decides the shape and geometry of molecule. Now these electron pairs, they can be of two type. One is the bond pair, second is the lone pair. So whenever these electrons are involved in any bond formation, these are called as bond pairs. For example, you can see here this electron pair, this is involved in bond formation, so this is called as bond pair. But for example, if you see the example of ammonia molecule, so you can see ammonia is like this. In this case you can see that this is a lone pair, whereas this and this, these all are bond pairs. So if I talk about ammonia molecule, so you can see here the lone pair is equals to 1, but the bond pairs are equals to 3. Now these bond pair and these lone pairs, they experience some sort of repulsions. Now order of the repulsions is as follow, that the lone pair repulsions are the most strongest repulsions, then lone pair bond pair repulsions, and then we have the bond pair repulsions. Now the bond pair is attracted by two nuclei, so it occupies less space and causes less repulsion, whereas in case of the lone pair, it is attracted only by one nucleus and therefore it occupies more space. So that is why the lone pair, they causes significant repulsions as compared to the bond pair. Now when the valence shell of the central atom contains only the bond pairs, the molecule forms a regular geometry, whereas the symmetry is distorted when there are lone pairs along with bond pairs. For example, you must have seen in case of ammonia. So this is the arrangement of the bond pairs and lone pair. So if you look at its geometry, so here the geometry is tetrahedral, but because of the presence of this lone pair, the shape is now changed. Now shape will be trigonal pyramidal. Now the next postulate is that the lone pair repulsions decreases the bond angle. Now to understand this, let us have a very simple example of methane molecule. Now in case of the methane molecule, we have all the bond pairs. ठीक है, तो यहाँ पे जो repulsions हैं, they are bond pair repulsions. Now to overcome these bond pair repulsions, the 4 bonds, they are inclined at an angle of 109 degree 28 inches. Now if one of the bond pair is replaced with a lone pair, for example in case of ammonia, we can see that one of the bond pairs is replaced with a lone pair. Now the bond angle is 107 degree 48 inches. So here what happens, these lone pairs bond pair repulsions, they try to decrease the bond angle and it reduces it
from 109 degree 28 inches to 107 degree 48 inches. Now further, if we replace another bond pair with lone pair, for example in case of H2O, we can see here, now instead of the two bond pairs we have the two lone pairs. Now there are lone pair repulsions, and we have seen in the previous postulate that the lone pair repulsions are the strongest repulsions. So as a consequence of these repulsions, these lone pair they try to push these bonds towards each other, reducing the bond angle further to 104 degree 28 inches. So we can see here, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोन पेयर repulsions नहीं थे, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर repulsions हैं, whereas here we have the lone pair repulsions, and the lone pair repulsions are the strongest repulsions, and therefore they have decreased the bond angle from 109 degree to 104 degree. Now the repulsions increases with increase in the number of the bonds between the two atoms. Now if you have a triple bond, that causes more repulsion than the double bond, which in turn causes more repulsion than the single bonds. Now let us see the next postulate. Next postulate is the repulsion between the electron pairs increases with increased electronegativity of the central atom, and hence the bond angle increases. Last postulate is that by using the number of electron pairs of the valence shell of the central atom, we can predict the shapes or geometries of the molecules. So here is the table by looking at which we can predict the shapes or the geometries of the molecule. Whatever is the total number of electron pairs around the central atom. So whatever is the number of the total electron pairs around the central atom, that decides the geometry of the molecule. Now in the total number of electron pairs, we look for the bonding pairs and the lone pairs. Now अगर सिर्फ bonding pairs हैं तो आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री है it is the same as the molecular geometry. Okay, but if you have the lone pairs, जहाँ पे भी आपके पास lone pair present होंगे वहाँ पे the molecular geometry will be different from the electronic geometry. Electronic geometry क्या है कि जहाँ पे आपके टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जितने भी आपके टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो कितना दूर दूर प्रेजेंट हो सकते हैं सो एज टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ रिपल्जन्स, सो दैट गिव्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. whereas here by molecular geometry we mean the shape, and shape is counted by neglecting the lone pairs in the geometry. ठीक है, वो कैसे होगा we will see this in detail. For the time being अभी आपको बस ये समझना है कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम अगर 2 हैं और वो 2 में से जो बॉन्डिंग पे वो दोनों ही बॉन्डिंग पेयर्स हैं, तो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री एंड द शेप इज लीनियर, द बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री. नाउ सपोज इफ यू हैव द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3. टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 का मतलब क्या है कि आपके पास टोटल इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं अराउंड सम सेंट्रल एटम C. ये जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करेंगे इन सच अ वे सच दैट द रिपल्जन्स आर मिनिमम. रिपल्जन्स को मिनिमाइज करना है, सो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. ओके, नाउ इन दिस ज्योमेट्री, ये तो हो गई ज्योमेट्री, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द शेप में वी नेग्लेक्ट द लोन पेयर्स. नाउ सपोज इन 3 में से एक लोन पेयर है, सपोज ये एक लोन पेयर है एंड हमारे पास बाकी के 2 एलिमेंट्स हैं, तो यू कैन सी कि अगर हम इस लोन पेयर को नेग्लेक्ट कर दें तो यहाँ पे ये जो बाकी मॉलिक्यूल बचा है इसकी शेप क्या है, बेंट है. ठीक है, और इसी बेंट को हम एंगुलर या वी शेप भी बोलते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर है तो वहाँ पे ज्योमेट्री तो हमारी ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी, बट द शेप विल बी बेंट. ठीक है, 2+1 कॉम्बिनेशन के लिए we will have the bent shape and the bond angle here will be less than 120 degree. Now suppose if we have total 4 electron pairs around the central atom. ठीक है, और वो चारों के चारों ही अगर बॉन्ड पेयर्स हैं तो उस केस में ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम रहती हैं, which is tetrahedral. But suppose if you have 3
bonding pairs and one lone pair. तो in that case geometry तो tetrahedral ही रहेगी, but the shape will be trigonal pyramidal. Now suppose out of this 4 we have 2 bond pairs and 2 lone pairs. तो again geometry जो है वो तो tetrahedral ही रहेगी, but the shape will change, which will be bent now. Now suppose you have total electron count of 5. Now for 5, ठीक है, तो बॉन्डिंग पेयर्स और लोन पेयर का कॉम्बिनेशन हम देखें तो हो सकता है सारी बॉन्डिंग पेयर हो, या हो सकता है ये 4+1 हो, या 3+2 हो, या 2+3 हो. हर एक केस में बिकॉज द टोटल इज 5, तो हर एक केस में आप देखोगे इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है वो सेम है, बट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आई कैन राइट इट लाइक शेप, बट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिफरेंट इन ऑल द केसेस. ठीक है, जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गई, इस केस में इट विल बी सी सॉ, दिस केस में दिस विल बी टी शेप, इस केस में दिस विल बी लीनियर. नाउ सपोज इफ यू हैव द टोटल 6, मीन्स द टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इज 6. अब वो 6 में क्या हो सकता है कि वो 6 के 6 ही आपके पास बॉन्ड पेयर्स हैं, और यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5+1, और you have a combination of 4+2. So in all these cases you can see here that the electron geometry is octahedral but the shape is changing. ठीक है, तो ये हम स्पेसिफिकली एग्जाम्पल्स लेंगे एंड देन आई विल टेल यू कि कहाँ पे शेप ऑक्टाहेड्रल है, कहाँ पे शेप टी शेप है या सीसॉ है. नाउ अगर अब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ द शेप, तो देन हाउ डू यू टेल अबाउट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में दे दिया अमोनिया एंड यू हैव बीन आस्क्ड कि आप इसकी शेप बताओ, तो हम शुरू कहाँ से करेंगे इसकी शेप निकालने के लिए. हम सबसे पहले देखेंगे इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख सकते हैं, नहीं तो विल स्टार्ट विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट. तो नाइट्रोजन के अगर आप देखोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p3. so it has 5 valence electrons. so if I draw 5 electrons here, तो you can see here कि 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो 3 हाइड्रोजन का मतलब हो गया ये इस तरह से there will be the bond pairs, और ये जो एक बचेगा this will be the lone pair. ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ नाइट्रोजन के अराउंड there are 1 lone pair and 3 bond pair, so total is 4. so whenever you have the total 4 bonds, तो geometry of the molecule always takes a tetrahedral arrangement of the electron pairs around the central atom. Now one of these will be occupied by the lone pair and the other 3 positions will be occupied by hydrogen atom. Okay, so now if you see here this place is occupied by lone pair. तो अगर आपसे पूछा जाए इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो हम ज्योमेट्री इसकी क्या कहेंगे कि द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स शेप, शेप क्या कहलाती है इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल. इसको याद रखने का तरीका क्या है कि ये देखो आप ये नीचे ट्राइगोनल प्लेन बन जाता है, और ये अगर आप इनको जोड़ दो आपस में तो दिस इज लाइक अ पिरामिड ऑन द टॉप ऑफ द हाइड्रोजन्स. सो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल पिरामिडल. नाउ सपोज आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है एग्जाम में वाटर. नाउ इन केस ऑफ वाटर सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन है ना, और इसके अराउंड क्या है वी हैव 2 हाइड्रोजन्स. सो फर्स्ट सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ 1s2 2s2 2p4. तो ये जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो हेयर वी हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो 1 2 3 4 and 5 and 6. So we can see here, so in this way the 2 bonds will be formed by hydrogens. So you can see here around oxygen this is the bond pair, this is the bond pair, whereas this is a lone pair and this is a lone pair. So around oxygen you have 2 bond pairs and 2 lone pairs. So total here is 4. Now since the total is 4, so you can see here the geometry. So the geometry will be tetrahedral again क्योंकि geometry is given by the total count. But the shape you can see here, the shape will be angular, or we can say bent, or we can say it to be a V-shape molecule. Now suppose let us take another example of a molecule like BRF3. Now in case of the BRF3, as you can see, bromine is the central atom here and the fluorines are the सराउंडिंग एटम्स. तो जो भी सेंट्रल एटम होता है
उसके अराउंड कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर्स हैं, दैट डिसाइड्स द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. तो अब सपोज ब्रोमीन है, अब इसका एटॉमिक नंबर तो बहुत ज़्यादा होता है, सो इट माइट हैपन कि आपको उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स याद ना हो, उससे कॉन्फ़िगरेशन याद ना हो. तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी जस्ट सी कि ये कौन सी ग्रुप को बिलोंग करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम रहते हैं सारी एलिमेंट्स के लिए. फॉर एग्जांपल यू हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो सबके केस में द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम विच इज़ 7. तो अब अगर हम ब्रोमीन के लिए देखें तो हेयर द ब्रोमीन इज हैविंग 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, and we know we are having 3 fluorines bonding to this Br. So you can see here this is one lone pair, this is another lone pair, but these are bond pairs. So around bromine we have 2 lone pairs, we have 3 bond pairs, which sums to a total of 5. It means that the arrangement of the groups around bromine is going to take the geometry of trigonal bipyramidal. ठीक है, तो अरेंजमेंट हम उसी तरह से करेंगे. सो दिस इज ब्रोमीन, दिस इज 1, 2, 3. ये जो 3 बॉन्ड होते हैं ये एक प्लेन में होते हैं. 4th बॉन्ड इज अबव द प्लेन, 5th बॉन्ड इज बिलो द प्लेन. नाउ ये जो बॉन्ड्स होते हैं विच आर अबव एंड विच आर बिलो, these bonds are called as axial bonds. ठीक है, whereas this bond and this bond, these 3 bonds are called as equatorial bonds. So this is also equatorial, this is also equatorial. Now there is a difference in the length of the axial and the equatorial bonds. Now if you see here, these are the axial bonds and these bonds are perpendicular to this plane. Okay, now if we see at 90-degree angle, so to this axial bond, these all 3 bonds are at an angle of 90 degree. Similarly, if you look at this bond which is below this trigonal plane, again you can see this is also making an angle of 90 degree with all the 3 bonds present here in the equatorial plane. So you can see at 90-degree angle, the axial bonds, they suffer a lot of repulsion from the electron pairs which are present in the equatorial plane. So the axial bonds, they suffer a lot of repulsions. So in such geometry, axial bonds are always longer than the equatorial bonds. ठीक है, now if you see between all these 3 equatorial bonds, you can see the bond angle is 120 degree. So these equatorial bonds are quite far apart and they do not have such type of repulsions in between them. So whenever we are having any lone pair present, so the lone pairs can either take the axial position or the lone pair can take the equatorial position. So if we look here again, so you can see here we had 2 lone pairs and we had 3 bond pairs. Now the 2 lone pairs can be both at equatorial position, both can be at axial positions, or one can be at equatorial, the other can be at axial position. So let us consider all these 3 possibilities. Now suppose let us consider the 3 cases. In the first, we are having the lone pairs at the axial position. Now in the second case, we are having both the lone pairs at the equatorial position. And in the third case, we are having one at the equatorial position and the other at the axial position. The remaining 3 positions being occupied with the fluorine atoms. Now we will see all the repulsions at 90 degree. ठीक है, कहीं ना कहीं हमें इसको स्टडी करना है तो हमें कोई ना कोई एक एंगल फिक्स करना पड़ेगा. सो हमने एक एंगल फिक्स कर लिया है कि हम जो भी रिपल्जन्स देखेंगे 90 डिग्री पर देखेंगे. नाउ अगर हम 90 डिग्री पर रिपल्जन्स देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी कि जो ये हमारा लोन पेयर है, तो आप देखोगे 90 डिग्री पे इट फेजेस 1, 2 and third repulsion due to this. All this is 90 degree. So there will be 3 lone pair bond pair
रिपल्जेंस. ठीक है, सिमिलरली जो ये वाला हमारे पास लोन पेयर है, दिस विल ऑल्सो फेस 90 डिग्री रिपल्जेंस विद दिस एंड विद दिस बॉन्ड पेयर्स. सो 3 plus 3, there will be 6 lone pair bond pair repulsions. Now in this second figure, if you see at 90 degree, the lone pair bond pair repulsions are, now let us see in this figure. Now if you can see here, we have this lone pair and this will be facing repulsion with this fluorine at 90 degree and with this fluorine at 90 degree. Similarly, this lone pair will face repulsion at 90 degree due to this fluorine and due to this fluorine. So this accounts for that there are 2 plus 2 equals to a total of 4 repulsions. Now let us see in this figure number 3 at 90 degree only. Now if you see here, this lone pair will face lone pair repulsion due to this and will face lone pair bond pair repulsion due to this. So if we write lone pair repulsion equals to 1 and lone pair bond pair repulsion is also equals to 1. But at the same time you can see here that this electron pair will also be facing lone pair repulsion due to this electron pair. So I can write it as 1 plus 1 and similarly it will be facing the 2 repulsions due to this fluorine and this fluorine both being at 90 degree. So this will be 1 plus 2 equals to 3. Now we have studied that lone pair repulsions are the strongest repulsions, then lone pair bond pair repulsions followed by bond pair repulsions. So account of this we can say that the third structure, this is going to be the most unstable structure because of the presence of lone pair repulsions. Now if we look at the structure 1 and 2, so we can see here that here we have more number of lone pair bond pair repulsions, here we have less number of lone pair bond pair repulsions. So we can say that second is going to be the most stable arrangement, or we can say it is going to be the most stable structure, okay, where the lone pairs are occupying the equatorial पोजीशन. तो ज्योमेट्री आप देखोगे तो इट इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, लेकिन शेप में हम लोन पेयर कंसिडर नहीं करते. तो अगर हम लोन पेयर को कंसिडर ना करें तो यू कैन सी दैट इट रिजेंबल्स टू ए टी, है ना, टी बन रहा है ऐसे. सो दिस शेप इज कॉल्ड एज टी शेप. सो ज्योमेट्री हम जब भी बताएंगे हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर सबको कंसिडर करके and then we will tell the geometry. But shape में हम lone pairs को consider नहीं करते हैं. We just see कि how the bond pairs are arranged. Now whenever we are preparing for any exam, we are always looking for the short tricks, है ना, कि short में पता चल जाए कि कैसे करना है, इतना LP और BP को बनाना ना पड़े. तो shortcut क्या है to determine the shape? Now there are two shortcuts. जो first shortcut है ये क्या है? This is to calculate the स्टेरिक नंबर. नाउ स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है? इट इज 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम ठीक है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स obviously which are present around the central atom, plus अगर आपका जो स्पीशीज़ है वो कैटायन है तो आपको क्या करना है, उसका चार्ज सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर एनायन है तो उसका चार्ज ऐड करना है. तो एनायन है तो उसका चार्ज हम ऐड करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे प्लस ए, और अगर कैटायन है तो हम लिखेंगे माइनस सी, यानी कि जितने भी आपका कैटायनिक चार्ज है. सो दिस विल बी द नंबर ऑफ कैटायनिक और यू कैन से positive charge, and A is number of anionic or you can say negative charge.
इसको हम कैलकुलेट करेंगे और अगर s की वैल्यू 2 आती है तो उसका मतलब जो मॉलिक्यूल है दैट इज लीनियर। अगर इसकी वैल्यू 3 आती है देन द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। अगर s की वैल्यू 4 आती है तो स्पीशीज कैन बी टेट्राहेड्रल। अगर s की वैल्यू 5 आती है तो स्पीशीज कैन बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर s की वैल्यू 6 आती है तो द शेप इज octahedral. Now let us see this question to understand our trick. Question है in which one of the following pairs the species have similar geometry. अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो ऑब्वियसली आपको जितनी भी स्पीशीज गिवन है हर एक की ज्योमेट्री निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं CO2 से। तो CO2 के केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A। ठीक है, अब CO2 इज न्यूट्रल तो C 0 है, A 0 है। नाउ सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन है। कार्बन के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 4 प्लस मोनोवेलेंट ग्रुप्स यहाँ कुछ भी नहीं है मोनोवेलेंट क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट। तो अगेन हियर इट विल बी 0 माइनस 0 प्लस 0 यू कैन राइट। तो 4/2 इज 2। तो नाउ इफ वी सी द ज्योमेट्री विल बी लीनियर। नाउ SO2 के केस में आप देखिए हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A। अगेन C A 0 है, सेंट्रल एटम सल्फर है, सराउंडिंग में मोनोवेलेंट कुछ भी नहीं है तो इट विल बी 0। ठीक है, मोनोवेलेंट स्पीशीज क्या होती हैं फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास हेलोजन्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर हाइड्रोजन, दीज ऑल आर मोनोवेलेंट। नाउ हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। सल्फर है, सल्फर में आप देखेंगे कि सल्फर बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ऑक्सीजन है ना, और ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। तो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 6। तो 6/2 यानी कि 3। सो एज आई हैव टोल्ड यू द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। नाउ लेट अस सी अमोनिया। अमोनिया वैसे भी आपको पता होना चाहिए इट हैज़ अ ज्योमेट्री ऑफ अ टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अगेन वी कैन सी दिस थ्रू फॉर्मूला हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A। अगेन कैटाइनिक चार्ज 0, एनाइनिक चार्ज 0। M मोनोवेलेंट एटम कितने हैं यहाँ पे 3 प्लस नाइट्रोजन के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 5। सो दिस विल बी 5 + 3/2 विच इज 4। सो द ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट देखिए BH3। नाउ BH3 के अराउंड अगेन फॉर्मूला लगाइए हाफ ऑफ, सीधे लगाते हैं फॉर्मूला, बोरॉन के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3, मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं यहाँ पे 3, कैटाइनिक चार्ज एनाइनिक चार्ज 0। सो 6/2 इज 3। सो अगेन द शेप हेयर विल बी द ज्योमेट्री हेयर विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। नाउ लेट अस सी कार्बोनेट एंड सल्फाइट। कार्बोनेट के लिए अगेन आप सेम फॉर्मूला लगाइए हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम 4, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट 0। अब यहाँ पे आप देखोगे -2 चार्ज है तो हमें ये जो नेगेटिव चार्ज होता है इसको ऐड करना है यानी कि +2। सो अगेन 4 + 2 यानी कि 6, 6/2 यानी कि 3। सो द ज्योमेट्री हेयर विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट देखिए सल्फाइट। नाउ सल्फाइट के केस में क्या होगा अगेन हाफ ऑफ सल्फर के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट यहाँ पे नहीं है, ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4। सो हेयर द ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। नाउ लेट अस सी द फोर्थ पार्ट में आप देखोगे आपको दिया हुआ है सल्फेट मॉलिक्यूल एंड क्लोरेट आयन। ठीक है, सल्फेट आयन एंड क्लोरेट आयन। नाउ सल्फेट के केस में अगेन हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इज 6, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीशीज कुछ भी नहीं है 0, -2 चार्ज है तो हम इसको प्लस कर देंगे। सो अगेन 6 + 2/2 विल बी 4। सो अगेन द ज्योमेट्री हेयर इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो क्लोरेट के लिए देखते हैं हम हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इज 7
प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीशीज़, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऊपर आप चार्ज देखोगे -1 चार्ज है, तो वो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, तो इट विल बी 4। सो दिस इज अगेन ऑल्सो टेट्राहेड्रल। अब आप क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और इनमें से किन की 2 की सेम है ज्योमेट्री। अब CO2 और SO2 दोनों अलग अलग हैं, एमोनिया एंड BH3 ये दोनों भी अलग हैं। अब कार्बोनेट और सल्फाइड के केस में आपने अभी देखा ही है कि अगेन दे बोथ आर हैविंग डिफरेंट ज्योमेट्री, बट सल्फेट एंड दिस क्लोरेट, these both ions are tetrahedral. Okay, both are tetrahedral. So for this, the fourth option is the correct answer. Now we are going to discuss the structures of XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeO4, XeO2F2 and I'll show you कि आप देखोगे कि जितने भी हमारे CSIR नेट के एग्ज़ाम्स हैं या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, उसमें जेनन का कंपाउंड बहुत बार आता ही आता है। आई वुड से 80% ऑफ द टाइम्स जेनन का कंपाउंड उसमें आता ही आता है। जेनन है ऐसा नोबल गैस, तो उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर 8। ओके ना, अब हम हर केस में क्या करेंगे, वी विल जस्ट अप्लाई आवर शॉर्ट ट्रिक, हाफ ऑफ। नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम, जेनन के अराउंड कितने हैं 8, प्लस मोनोवेलेंट स्पीशीज़ कितनी हैं आप देखोगे 2 हैं, चार्ज कुछ नहीं है, सो इट विल बी 8 + 2/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5। तो आप देखोगे द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना, ये ज्योमेट्री है। तो ये जो स्टेरिक नंबर है इट हेल्प्स यू टू प्रिडिक्ट ओनली द ज्योमेट्री नॉट द शेप। तो अगर आप इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करोगे ZnF2 के लिए, तो ज्योमेट्री तो हो गई इस तरह से। अब ऑब्वियस है कि यहाँ पे जेनन के अराउंड 2 ही बॉन्ड पेयर्स हैं, 2 फ्लोरीन है, तो यानी कि 2 ही बॉन्ड पेयर्स हैं। तो बाकी के इस 5 में से जो बचे यानी कि बाकी के 3 वो क्या हैं, लोन पेयर्स हैं। तो अब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो लोन पेयर्स हैं दे ऑलवेज प्रेफर टू टेक द इक्वेटोरियल पोजीशंस सो एज टू मिनिमाइज द रिपल्जन्स। तो जो फ्लोरीन्स हैं दे टेक एक्सियल पोजीशंस। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द शेप, तो अगर हम शेप की बात करेंगे, सो दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग लीनियर शेप। तो स्टेरिक नंबर निकाल के यू कैन डायरेक्टली सी द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सिमिलरली अब आप XeF4 के लिए देखिए, अगेन शॉर्टकट लगाएंगे, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम 8 प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट स्पीशीज 4, सो दिस इज 12/2 = 6, सो दैट मीन्स द ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, नॉट द शेप। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अगर आप देखो तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो अब आता है अगेन पॉइंट। अब आप देखोगे जेनन के अराउंड 4 फ्लोरीन है, तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर्स कितने हैं 4, टोटल कितना है 6 में से अगर 4 बॉन्ड पेयर्स हैं तो लोन पेयर्स कितने हुए 2, एंड दीज लोन पेयर्स दे ऑक्यूपाई these positions here and the fluorines take these positions. So if you see at the shape of the molecule, the shape is square planar. So there's a difference between the geometry and the shape of the molecule. Now XeF6 के लिए अगर हम देखेंगे, again we'll apply the shortcut, half of valence electrons around the central atom 8 plus monovalent species 6, no cation, no anion charge, so this is 14/2. Now 14/2 this steric number के corresponding जो ज्योमेट्री आती है, that geometry is called as pentagonal bipyramidal. ठीक है, एंड इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, पेंटागन बनाएंगे एक, और इसमें एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर एंड एक बॉन्ड प्लेन के नीचे जाता है। तो हेयर इट इज जेनन एंड दिस इज अ पेंटागन। ठीक है, अब जो यहाँ पे लोन पेयर होगा इट विल ऑक्यूपाई एनी पोजीशन हेयर एंड द रिमेनिंग्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय द 6 फ्लोरीन एटम। ठीक है, तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं, दिस शेप इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑल्सो ये जो हमारा स्टेरिक नंबर हमने कैलकुलेट किया था अभी
2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैंने आपको बताया था कि 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री होती है दैट इज़ लीनियर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री होती है दिस इज़ ट्राइगोनल प्लेनर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री होती है दिस इज़ टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। दिस इज़ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। This is octahedral. This is pentagonal bipyramidal. The same number can also be used to predict the hybridization here. So this corresponds to sp hybridization. This trigonal planar corresponds to sp2 hybridization. This corresponds to sp3. This corresponds to sp3d. Let me mention here this also corresponds to dsp2. So octahedral corresponds to sp3d2. So this corresponds to sp3d3. So the same steric number can be used to predict the geometry of the molecule as per predicted by the VSEPR theory, as well as you can see the hybridization also from the corresponding steric number. Now coming back to the shape of the molecule. Now the next shape of the molecule is XeO3. So again we will apply the formula here. Half of central atom xenon है, इसके around valence electrons 8 हैं. Monovalent species around xenon नहीं है, यहाँ पे 0 है. So this will be 4. So 4 means here the geometry will be tetrahedral. अब अगर हम इसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट देखें तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है इस तरह से. सो वी नो 3 पोजीशन तो ऑक्सीजन ऑक्यूपाई करेगा, एज वेल एज यू शुड नो दैट ऑक्सीजन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड्स. तो ये तो 3 हो गए डबल बॉन्ड, एंड द 4th पोजीशन विल बी ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर. सो हेयर द शेप इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल पिरामिडल. Now the next molecule is XeO4. अब XeO4 के लिए अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे. हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड xenon इज 8. नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीशीज कुछ नहीं है, कोई केटायन कोई एनायन कुछ नहीं है. सो दिस विल बी सिंपली 4. सो दिस मीन्स हेयर द ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल. अब इसका हम टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट अगर देखें तो इट विल बी लाइक दिस. So all the 4 positions will be occupied by oxygen, and we know that oxygen can form double bonds with compounds or with the atoms. So now again the geometry and the shape here is same, so both are going to be tetrahedral. Now next is XeO2F2. Now we look at the shortcut formula again. Half of central atom here is xenon. तो xenon के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 प्लस मोनोवेलेंट स्पीशीज कितनी है? एज यू कैन सी 2 मोनोवेलेंट स्पीशीज वी हैव. नो केटायन नो एनायन, सो दैट्स ऑल. सो दिस कम आउट टू बी 5. 5 का मतलब क्या है कि द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. नाउ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट देखते हैं तो हम किस तरह से बनाते हैं. दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन विच हैज़ द 3 bonds, and these are going to be the axial ones. So here we have fluorines present here, 2 oxygens present here, and the position here will be occupied by lone pair. Oxygen forms a double bond with xenon. So this is the shape, and this shape is called as seesaw shape. Now one thing to be noted here is that whenever you have this type of structures where you have a situation कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से कोई भी इक्वेटोरियल पोजीशन में आ सकता था, ठीक है, तो हमें वहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एटम दे ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन. Now let us see the other example. For example, if you have a molecule like TeCl4 और इसके लिए आपको उसकी शेप पे ज्योमेट्री निकालनी है. अब सपोज अब आपको नहीं पता कि टेल्यूरियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा या इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन
की फैमिली की जब हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन की फैमिली में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, एंड ऑल दीज हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 6. So here tellurium is having 6 valence electron. तो वही सेम रूल अप्लाई करेंगे to determine the steric number, that will be equals to half of valence electrons around the central atom which is 6 plus monovalent atoms कितने हैं यहाँ पे 4. Now कोई cationic कोई ionic charge नहीं है, so this will be 10/2 equals to 5. So 5 means the geometry will be trigonal by pyramidal. Now if we draw the geometry shows you the arrangement of the bond pairs and lone pairs. तब आपको पता है कि out of 5 4 हमारे पास क्लोरीन है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे लोन पेयर 1 होगा और बॉन्ड पेयर यहाँ पे 4 होंगे. तो अब हमें पता है कि लोन पेयर जब भी प्रेजेंट होगा तो इट प्रेफरेंशियली टेक्स द इक्वेटोरियल पोजीशन सो एज टू मिनिमाइज द रिपल्जन्स. तो जो बाकी की 4 पोजीशंस हैं दे विल बी ऑल ऑक्यूपाइड विद द chlorine atoms, and this shape is called as seesaw shape. So similar to TeCl4, the other chlorides or other similar chlorides of the same family like SeL4, SeCl4, so they all will also have the same shape, that is seesaw. Now let us again see another molecule which is BrO3 minus. So again we will apply our trick of calculating the steric number, that will be equals to half of the valence electrons around the central atom. Now here the central atom is bromine, so the valence electrons are 7. Monovalent atoms यहाँ पे कुछ भी नहीं है, so just put a 0. Now since here is one negative charge, so you will add that negative charge here, so this will be 8/2 equals to 4. So this means the geometry of this will be tetrahedral. Now how do we show the tetrahedral geometry? Like this. Okay, obviously 3 positions will be occupied by oxygen. One of the oxygen will be carrying the negative charge, remaining 2 will be forming double bonds with bromine. Okay, now you can see here one position is left. So if you look at the valence electrons around bromine, so you can see here that bromine is having 7 valence electrons. So if you see here, so this is 1, 2, 3, 4, 5. 2 electrons are left. They will be occupying a lone pair orbital. So here you can see, here you have bond pair equals to 3 and lone pair is equals to 1. तो VSEPR का ये postulate है कि अगर double bond present है या triple bond present है, then they are considered approximately to be single bond pair while deciding the geometry or shape of the molecule. Now इसी पे based एक और question है that structure of N2O5 in the solid and gas phases. Now if we see in the solid phase, this N2O5, this exists as a salt NO2 plus NO3 minus. Now if you see the shape of this molecule and if you see the shape of this, they are different. So again we can apply the same rule, steric number for NO2 plus. So this will be half of valence electrons around nitrogen are 5. तो plus charge है तो यहाँ -1 कर देंगे. So this will be 4/2 which will be equals to 2. Now equals to 2 का मतलब क्या है? That the geometry of this will be linear. Now if we see the steric number for NO3 minus, this will be half of valence electrons around central atom. ठीक है, मोनोवेलेंट स्पीशीज कुछ नहीं है बट नेगेटिव चार्ज है, तो वी विल ऐड दैट नेगेटिव चार्ज टू गिव 6/2 equals to 3. So that means this has a shape of trigonal planar. ठीक है,
So if you look at the shape of this, so this will be like this, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, ठीक है। तो दो डबल बॉन्ड O होंगे एंड द वन विल बी O माइनस. So this shape will be called as trigonal planar. So this is the structure of N2O5 in the solid state. Whereas if you see in the gaseous phase, N2O5 has this type of a structure. So before moving ahead with the CSIR net questions of the previous years, let us see the second short trick to determine the steric number. So the steric number, according to the second trick, it is given by sum of all valence electrons of all atoms which are present in the ion or the molecule, plus if there is any anionic charge, then you have to add that charge, and if there is any cationic charge, then you have to subtract that cationic charge. Now if this S number comes out to be less than 8, then what we do in that case, we divide the steric number by 2 एंड डिवाइड करके आपके पास जो भी नंबर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, अकॉर्डिंगली वी विल टेल द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. बट इफ दिस स्टेरिक नंबर इज ग्रेटर देन 8, तो उस केस में हमें क्या करना है, फर्स्ट यू डिवाइड स्टेरिक नंबर बाय 8, देन डिवाइड द रिमाइंडर by 2. So now the steric number will be equals to whatever quotient we have plus it will be the greatest integer less than or equals to number obtained by dividing remainder by 2. ठीक है, तो ये सेकेंड ट्रिक है. अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जस्ट आई विल शो यू थ्रू अ एग्जांपल. नाउ फॉर एग्जांपल you have NO2 molecule and okay, we have to apply the trick to this molecule. तो NO2 के केस में आप देखोगे we have to first calculate the sum of all valence electrons. Now नाइट्रोजन के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6. सो दिस विल बी 5 प्लस 12 विच इज़ 17. नाउ दिस इज ग्रेटर देन 8. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस 17 को हमें 8 से डिवाइड करना है. सो डिवाइडिंग 17 बाई 8 दिस विल कम आउट टू बी, अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करें, 8 को हमें 17 से डिवाइड करना है. सो दिस विल बी 8 2 16. सो यू आर लेफ्ट विथ 1 एज द रिमाइंडर. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा वी हैव टू डिवाइड द रिमाइंडर बाय 2. तो यहाँ पे जो क्वोशंट आया आपके पास वो क्या आया 2. सो वी हैव टू डू 2 प्लस हमारे पास रिमाइंडर था 1. नाउ दिस 1 इज टू बी डिवाइडेड बाय 2. सो अब ये जो 1/2 है, अगर इसको हम लिखें दिस विल बी 2 प्लस 0.5. तो ये जो 0.5 है हमें या तो इससे छोटी या इसके बराबर की इंटीजर वैल्यू लेनी है. तो 0.5 से छोटा 0 होगा इंटीजर. सो दिस विल बी 2 प्लस 0 यानी कि इक्वल्स टू 2. सो दिस स्टेरिक नंबर हेयर विल बी 2. सो 2 मीन्स दिस मॉलिक्यूल विल बी लीनियर इन ज्योमेट्री. इसी का हम और एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव I3 प्लस. तो I3 प्लस कैसे बनेगा, when this I2 will give its lone pair to I plus. Now let us see the number of the valence electrons. तो अगर हम ये दो I के रेफरेंस में देखें, there will be 7 valence electrons for each. तो यानी कि 7 into 2 हो गया प्लस इस वाले आयोडीन के लिए देखेंगे हम तो क्या होगा, अगेन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर क्योंकि प्लस चार्ज है तो हम इसको -1 कर देंगे. सो दिस विल बी 14 प्लस 6 इक्वल्स टू 20. नाउ दिस इज ग्रेटर देन 8. तो हमें क्या करना है, इसको हमें पहले 8 से डिवाइड करना है, यानी कि 8 2 जा 16
यानी कि आ गया 4, तो हमारा जो स्टेरिक नंबर होगा वो क्या होगा, कोशेंट प्लस जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हमें 2 से डिवाइड करना है. सो दिस विल बी 2 + 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 4. तो यानी कि जो उसकी ज्योमेट्री है, द ज्योमेट्री विल बी tetrahedral. I'm not talking about the shape, I'm just talking about the geometry. Again I'll show you one more example. Suppose we have I3 minus, so again we will count the valence electrons. तो अगर हम देखें इसमें how this will be formed, I2 plus I minus, है ना, this is how it will be formed. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं. टोटल 3 आयोडीन है, तो यानी कि 3 × 7 यानी कि 21. ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो वो हम ऐड कर देंगे, दिस विल बी 22. नाउ दिस इज अगेन ग्रेटर देन 8, तो क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 22 को, अगेन दिस विल बी 8 × 16, सो इट विल बी 6. तो हमें क्या करना है, स्टेरिक नंबर क्या होगा हमारा 2, जो भी क्वोशंट है 2 प्लस जो भी रिमाइंडर है दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 2. सो दिस विल बी 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 5. तो 5 का मतलब क्या होगा, दैट द ज्योमेट्री will be trigonal by pyramidal. Now let us see the geometry. How do we draw the geometry of the molecule? एक I2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, जिसको हमने यहाँ पे बना दिया I2. ठीक है, अब इससे एक I माइनस बॉन्ड कर रहा है, सो लेट दिस बी दैट I माइनस. तो अब आप देखोगे आयोडीन के अराउंड वी हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ यूज़ हो गया. इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी गिवन बाय I माइनस ओनली. तो यहाँ पे आयोडीन का एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज़ हुआ है अभी तक, तो बाकी कितने बचेंगे, 2 3 4 5 6 7. तो इसका मतलब क्या है, हेयर वी हैव 3 लोन पेयर्स एंड वी हैव 2 बॉन्ड पेयर्स. सो 3 + 2 का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो ज्योमेट्री बनेगी, ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बट हेयर यू कैन सी द शेप इज लीनियर. तो I3 माइनस I3 प्लस इस तरह के मॉलिक्यूल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं. नाउ लेट अस सी सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम CSI और नेट प्रीवियस पेपर्स. ये जो पेपर्स के क्वेश्चंस हैं दे विल गिव यू एन आइडिया कि किस टाइप के मॉलिक्यूल्स पूछे जाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2013 December. Now they are asking the geometry around the central iodine in I3 plus and I3 minus ions respectively are. You can use the trick number 2. I3 plus यानी कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, 7 × 3 यानी कि 21, प्लस चार्ज है तो -1 करेंगे, इट विल बी 20. नाउ सिंस इट इज ग्रेटर देन 8, तो हम क्या करेंगे, इस 20 को डिवाइड करेंगे विद 8, सो दिस विल बी 8 × 16 4. नाउ क्वोशंट जो भी है वो एज इट इज़ लेना है, यानी कि 2 प्लस जो भी रिमाइंडर आएगा दैट इज़ टू बी डिवाइडेड बाय 2. नाउ सो दिस विल बी 2 + 2 = 4. नाउ 4 अगर स्टेरिक नंबर आता है तो इसका मतलब क्या है, दैट द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल. तो अगर हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को ड्रॉ करें, सो इट विल बी लाइक दिस. So this is I3 plus molecule. तो इसकी जो ज्योमेट्री है ये टेट्राहेड्रल है, बट अगर आपसे शेप पूछा होता तो इस केस में शेप होती है हमारे पास एंगुलर और वी कैन से बेंड. नाउ सेकेंड स्पीशीज जो आपको दी हुई है दैट इज I3 माइनस. अगेन यू काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच विल बी अगेन 7 × 3 यानी कि 21. क्योंकि माइनस चार्ज है वी विल ऐड दिस हेयर, दिस विल बी 22. So this is again greater than 8, so divide by 8, so this will be again 8 × 16. So whatever number is left, now स्टेरिक नंबर कैसे लेंगे, जो भी क्वोशंट है यानी कि 2 प्लस जो भी रिमाइंडर आया है डिवाइड बाय 2, so this will be 2 + 3 = 5. now स्टेरिक नंबर 5 अगर आता है तो उस केस में जो ज्योमेट्री होती है दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. अब अगर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल को हम ड्रॉ करें तो इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 तो लोन पेयर्स हैं एंड हेयर ये विल बी I, दिस विल बी I एंड द नेगेटिव चार्ज विल बी हेयर. तो अगर आपसे इस मॉलिक्यूल की शेप पूछी होती तो यहाँ पे शेप है हमारे पास लीनियर, लेकिन हमसे पूछा है ज्योमेट्री. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी
third option, that is I3 plus will have a tetrahedral geometry and I3 minus will have a trigonal bipyramidal geometry. Moving on to the next question from June 2013 paper. Now number of the lone pairs are identical in the following pairs. तो आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि किन दो मॉलिक्यूल्स में सेम नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं. सबसे पहले शेप देखते हैं. XeF4 की शेप मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर दी है इस वीडियो में. सो इफ यू रिमेंबर द शेप इज लाइक दिस with 2 lone pair of electrons. ClF3 is just like the BrF3. तो BrF3 हमने डिस्कस किया है आपसे. So this molecule is having a T shape like this. So again 2 lone pairs are present here. Now XeO2F2, again this shape we have discussed with you. So the shape is like this. Where I told you that the less electronegative atoms, they occupy the equatorial position. Now next is ICl4 minus. We can use the steric number rule. So that will be, पहले वाला rule use करते हैं यहाँ पे, half of valence electrons around central atom, यानी कि 7 हो गया आयोडीन के अराउंड, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स 4 हैं, -1 चार्ज है, तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे. सो दिस विल बी 12/2 equals to 6. तो 6 का मतलब क्या होता है? That the geometry will be octahedral. The shape of the molecule will be like this. Then अगर हम देखें यहाँ पे आपको और क्या दिया है, XeO4 दिया है. XeO4 again ये हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे. So it is having a tetrahedral shape or geometry. So all the molecules we have taken. Now we have to count the lone pairs. तो अगर आप इसमें देखो, यहाँ पे lone pairs हैं 2. Here the lone pairs is 1. यहाँ पे हम lone pair देखें तो ये 0 हैं. इस molecule में देखें तो lone pair 2 हैं. यहाँ देखें तो lone pair भी 2 हैं. तो if you see here, the correct option is A option, where both the molecules are having equal number of lone pairs. Now next question is from June 2014 and this question is कि आपको identify करना है which of the pair is non-linear and isostructural. Isostructural means having the same shape. So just let us move on to writing the molecule SeL2, I3 minus, I3 plus, ClF2 minus. So let us just calculate the steric number for all these. Steric number is equals to half of valence electrons around the central atom is 6, monovalent atoms are 2. So this is 4. So 4 का मतलब क्या है कि जो geometry है that is going to be tetrahedral. तो अगर tetrahedral arrangement हम देखें, so it will be like this. So the shape will be bent, or we can say the shape is angular. Now if we see for I3 minus, so in this case it will be difficult कि कौन सा central atom होगा हमारे पास. तो हम यहाँ पे दूसरा steric rule लगाएंगे which will be count the total valence electrons. ठीक है, तो यानी कि 7 into 3 plus 1 यानी कि 22. we will divide this 22 by 8. ये हम already डिस्कस कर चुके हैं. so you can refer the previous slides. तो इसकी जो शेप आती है I3 माइनस मॉलिक्यूल की, इफ़ यू रिमेंबर, इट कम्स आउट टू बी ए लीनियर मॉलिक्यूल. ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी ए लीनियर मॉलिक्यूल. नाउ I3 प्लस के केस में अगेन हम स्टेरिक रूल नंबर 2 लगाएंगे, ट्रिक नंबर 2 लगाएंगे. सो दैट विल बी अगेन 7 into 3 बट -1, क्योंकि अगर कैटायनिक चार्ज होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं. दिस विल बी 21/8. तो यू विल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट दिस कम्स आउट टू बी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बट एंगुलर शेप. नाउ ClF2 माइनस अगर हम ये देखें, अगेन वी विल अप्लाई द स्टेरिक रूल. ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम 7, मोनोवेलेंट एटम्स 2, माइनस चार्ज है तो वो हमें यहाँ पे ऐड करना है. ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और यानी कि
यहाँ पे 3 लोन पेयर्स हैं और 2 फ्लोरीन्स होंगे, तो बोथ द फ्लोरीन्स विल टेक द एक्सियल पोजीशंस टू अवॉइड द रिपल्जन्स, सो दिस विल बी लीनियर इन शेप। क्वेश्चन में पूछा है द करेक्ट नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब है कि ये I3 माइनस एंड ClF2 माइनस, ये ऑप्शन तो कैंसिल ही हो गए हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन है क्या है, बी ऑप्शन, दैट इज SCl2 and I3 plus, they are non-linear and are having the same shape. Now see, next question is from June 2015 CSIR NET paper. Here you are given the 2 species for which you have to determine the geometries. So again here we can use the trick number 2, and using the trick number 2 steric number निकालते हैं सबसे पहले for Br3 plus. So total number of valence electrons will be 3 into 7, क्योंकि प्लस चार्ज है तो -1, यानी कि दिस विल बी 20। 8 से ज़्यादा है तो उसमें 20 को 8 से डिवाइड करना है। सो लेट अस डिवाइड दिस 20 by 8, सो दिस विल बी 8 to 16, यानी कि 4। नाउ जो भी हमारा क्वोशिएंट है उसको हमें लेना है प्लस, जो भी रिमाइंडर आया है उसको 2 से डिवाइड करना है। सो दिस विल बी 2 + 2 = 4, एंड 4 स्टेरिक नंबर अगर आता है, सो दिस इम्प्लाइज दैट द ज्योमेट्री हियर इज tetrahedral. Now that is C for I5 plus. So again you can use the trick number 2 only. So 5 into 7 minus 1, यानी कि 34. So these are the total number of valence electrons. So since it is greater than 8, so divide this by 8. So we will divide this by 8. So this will be 8 4 ja 32. So 2 is left. So whatever is the quotient, take that. जो भी रिमाइंडर है डिवाइडेड बाय 2, सो दिस विल बी 4 + 1 = 5. So this implies here the geometry will be trigonal by pyramidal. So owing to this you can see I think the B option will be the करेक्ट ऑप्शन. तो अभी तो ज्योमेट्री है, लेकिन अगर आपसे शेप पूछा जाए तो सबसे पहले Br3+ के केस में यू मेक द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, तो ऑब्वियसली Br इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पोजीशन बचेगी, दिस विल बी लोन पेयर. सो नाउ दिस विल बी हैविंग ए प्लस चार्ज. सो यू कैन सी हियर द शेप विल बी एंगुलर, और यू कैन से V शेप, और वी कैन से बेंड शेप. I5+ के केस में आप देखिए, क्योंकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट है, तो ऑब्वियसली एक आई सेंटर में होगा. मेक द अरेंजमेंट. अब बाकी बचे 4 I और एक होगा हमारे पास लोन पेयर. लोन पेयर ऑलवेज प्रेफर्स टू टेक द एक्सियल पोजीशन. बाकी के जो 4 आयोडीन्स हैं दे विल बी ऑल लाइंग हेयर. सो दिस शेप इज कॉल्ड एज द सीसॉ shape. Now see the next question, which is from December 2015 paper. Again they are given the same molecules, वही ज़नन के compounds हैं जो हमने अभी डिस्कस भी कर चुके हैं ऑलरेडी, कि XeF2 के केस में एंड XeO2F2 के केस में यू हैव टू टेल द स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर्स का मतलब है शेप. जैसे आप देख भी सकते हो यहाँ पे लीनियर लिखा है, साथ में आप देखो यहाँ सीसॉ बेंड लिखा है, तो यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट द शेप. ठीक है, तो XeF2 के केस में आई हैव टोल्ड यू दिस कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं, रिपीटेड होते हैं. तो यू कैन सी हेयर द शेप ऑफ XeF2 इज लीनियर एंड XeO2F2 ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया है अभी, बट स्टिल वी कैन डिस्कस दिस अगेन. अगर इसमें हम रूल नंबर 2 लगाते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट जेनन के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन के अराउंड है 6 प्लस 2 इंटू फ्लोरीन के अराउंड है 7. सो दिस इज 8 प्लस 12 प्लस 14, सो दिस विल कम आउट टू बी 34. नाउ सिंस इट इज ग्रेटर देन 8, सो डिवाइड दिस बाय 8. तो जो भी क्वोशंट है वो प्लस जो भी रिमाइंडर है डिवाइड बाय 2, सो दिस विल बी 4 + 1 = 5. तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ज्योमेट्री क्या आती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. तो ये जो अभी हमने बताया है ये है ज्योमेट्री. इस केस में ये जो हमने बताया है दिस इज शेप. तो अब ये जो ज्योमेट्री है इसमें हम अरेंजमेंट देखते हैं कैसे अरेंज होंगे. अगेन ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप बनाते हैं तो वो इस तरह से बनती है.
and in this case we have discussed double bond O occupies this place, fluorines are here, and here you have the lone pair. So this shape is called as the seesaw shape. So you can see here that the third option is the correct option. Now this question is from June 2016. The question is that you have to tell the shape of TeF5 minus on the basis of VSEPR theory. Now TeF5 minus क्या कर सकते हैं, या तो आप रूल 1 अप्लाई करो या रूल 2 अप्लाई करो. अगर हम रूल 1 अप्लाई करते हैं तो दिस विल बी द स्टेरिक नंबर विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सेंट्रल एटम के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि V प्लस मोनोवैलेंट एटम्स, क्योंकि यहाँ पे एनायन है तो प्लस एनायनिक चार्ज. नाउ टेलुरियम बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ऑक्सीजन. मैंने अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले भी इस लेक्चर में. तो ऑक्सीजन की फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं. सो दिस विल बी हाफ ऑफ 6 प्लस नाउ मोनोवैलेंट स्पीशीज और एटम्स प्रेजेंट हेयर आर 5. एनायनिक चार्ज 1 है, इसको हम ऐड करेंगे. दिस विल बी 12/2 इक्वल्स टू 6. सो दिस इम्प्लाइज द ज्योमेट्री of the molecule will be octahedral. Okay, now the geometry is octahedral. तो अगर हम इस octahedral geometry को draw करें तो it will be like tellurium will be in the center and this will be drawn like this. So जब भी हमारे पास इस तरह का octahedral arrangement होगा और lone pair होगा तो दो lone pair always occupies this axial positions. So here we have the 5 fluorines with a negative charge here and the geometry तो यहाँ पे octahedral है, but the shape, this shape is called as square pyramidal. Now why square pyramidal? So if you see I join this to this to this to this, so this forms a square. ठीक है, और ये जो एक फ्लोरीन है अगर आप इनको डॉट करके ज्वाइन करोगे so they all are like a pyramid. So this will be like a pyramid. So this is called as square pyramidal shape. So the option here correct will be the B. Next question, which is from June 2017. The question is based on the VSEPR theory. You have to predict the shapes of this and this. Now for XE F5 minus, again we will apply the shortcut rule. Steric number is equals to half of valence electrons plus monovalent atoms. क्योंकि ये anion है तो we will add the anionic charge. So this will be half of xenon के around valence electrons होते हैं 8 plus monovalent atoms है यहाँ पे 5. Anionic charge is 1. So add this. So this will be half of 8 plus 5 is 13 plus 14 equals to 7. Now 7 के corresponding जो ज्योमेट्री होती है that is pentagonal bipyramidal, but this is the geometry. So let us see the shape of the molecule. So let us first draw this. Pentagonal कैसे बनाते हैं? We draw a pentagon around the central atom. उसमें एक बॉन्ड ऊपर होता है, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन होता है. सो 5 हमारे पास फ्लोरीन्स हैं. सो दीज 5 पोजीशंस विल बी ऑक्यूपाइड बाय 5 फ्लोरीन्स एंड दिस विल बी ऑक्यूपाइड बाय लोन पेयर. सो यू कैन पुट द नेगेटिव चार्ज हेयर. सो ज्योमेट्री यहाँ पे भले ही हमारे पास पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, बट द शेप इज गोइंग टू बी पेंटागोनल प्लेनर. ठीक है, क्योंकि पेंटागन प्लेन में ही सारे फ्लोरीन एटम्स आ गए हैं. नाउ इफ़ यू लुक एट BrF5, नाउ BrF5 के केस में अगेन वी विल अप्लाई द सेम रूल. हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम 7 प्लस मोनोवैलेंट स्पीशीज 5. सो दिस इज 12/2 यानी कि इक्वल्स टू 6. 6 का मतलब है दैट द ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल. अगर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो यही अरेंजमेंट हम ड्रॉ करते हैं अराउंड द ब्रोमीन एटम. सो दिस विल बी लाइक दिस, यानी कि 5 फ्लोरीन है और एक क्या होगा, लोन पेयर. सो जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ये हो गया हमारा स्क्वायर. और अगर आप इनको डॉट डॉट करके ज्वाइन कर दो सो दिस बिकम्स ए पिरामिड. सो दिस इज कॉल्ड एज स्क्वायर pyramidal shape.
ओके, सो इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम December 2018। क्वेश्चन क्या है, दैट यू हैव अ मॉलिक्यूल N3P3F6, ज्योमेट्री अराउंड नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हमसे पूछ रहे हैं। नाउ दिस इज स्लाइट ट्रिकी, कैन नॉट बी डन बाय एनी ऑफ द रूल। फॉर दिस यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल which is like this. So if you see here around nitrogen, because VSEPR theory में double bond is considered equivalent to single bond, तो ये एक bond pair है और ये दूसरा bond pair है, ठीक है, और एक यहाँ पे क्या है, lone pair। तो around nitrogen you have 2 bond pairs and 1 lone pair, total of 3, ठीक है। total of 3 का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ज्योमेट्री है that will be trigonal planar। तो अगर हम फॉस्फोरस की तरफ देखते हैं, किसी भी फॉस्फोरस की तरफ, तो यू कैन सी हेयर ये हो गया एक बॉन्ड पेयर, ये हो गया दूसरा बॉन्ड पेयर, ये हो गया तीसरा, एंड डबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू 1। तो यहाँ पे आप देखोगे कितने हैं, 4 बॉन्ड पेयर हैं, एंड नो लोन पेयर अराउंड दिस फॉस्फोरस। सो 4 बॉन्ड पेयर्स बट लोन पेयर इज 0, टोटल इज 4। सो दिस implies that the geometry around phosphorus will be tetrahedral। तो यहाँ पे आप देखोगे द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर नहीं लिखा है, सिर्फ प्लेनर लिखा है, बट चलेगा, प्लेनर एंड फॉस्फोरस के अराउंड इट इज टेट्राहेड्रल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम December 2017। तो आपको यहाँ पे 3 स्पीशीज़ दी हुई हैं, पूछा है कि इनमें से कौन सी 2 स्पीशीज़ या एक सिंगल स्पीशीज़, कौन सी स्पीशीज़ की शेप पिरामिडल है। Now let us start with ClO3 minus. Again let us apply our steric number rule. It will be half of valence electrons plus monovalent atoms plus anionic charge. So this will be half of valence electron around chlorine is 7, monovalent species नहीं है, but anionic charge 1 है, तो we'll add 1. So this will be 4. So 4 implies for a tetrahedral shape. Sorry, tetrahedral ज्योमेट्री। नाउ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आप इसको अरेंज करिए, ClO3 माइनस को, so here you have one lone pair, so this shape is called as pyramidal। now let us see for XeO3। तो ये XeO3 हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं if you remember। तो इसकी शेप होती है कुछ इस तरह से, विच इज अगेन पिरामिडल। तीसरी स्पीशीज जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज SO3। तो फॉर SO3 हम यही रूल लगाते हैं स्टेरिक नंबर का, इक्वल्स टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड सल्फर 6 हैं, मोनोवैलेंट स्पीशीज है नहीं, ना केटायनिक चार्ज है ना एनायनिक चार्ज, दिस विल बी 3। सो इसका मतलब 3 है, तो यानी कि हेयर द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसी को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस। तो जो ज्योमेट्री है वही यहाँ पे शेप भी है, हेयर विल बी ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम December 2017। आपको 2 मॉलिक्यूल्स दिए हैं एंड यू हैव टू टेल द ज्योमेट्री। सबसे पहले XeF2O2 देखिए, ये हम आपको पिछली बहुत बारे एग्जाम्पल्स में दिखा चुके हैं कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो, ठीक है, रिपीटेडली किसी ना किसी ईयर में आ ही रहा है। सो यू कैन सी इसकी शेप तब तक आपको याद हो जानी चाहिए। सो दिस विल बी द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इसकी ये जो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। और अगर हम शेप की बात करें तो दिस शेप इज कॉल्ड एज सीसॉ शेप। नाउ कमिंग टू SnF3। नाउ SnF3 में अगेन व्हाट यू कैन डू इज वी कैन अप्लाई द स्टेरिक नंबर रूल। तो इस केस में आप देखोगे टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, सल्फर के अराउंड है 6, नाइट्रोजन के अराउंड है 5, प्लस 3 × 7 हो गए फ्लोरीन के अराउंड। सो दिस इज 11 +
21 मीन्स 32, क्योंकि 8 से ज़्यादा है तो इसलिए इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। 4 आ गया, इट विल एंड हेयर। 4 का मतलब है कि जो ज्योमेट्री होगी इस मॉलिक्यूल की दैट विल बी टेट्राहेड्रल। तो आप देखेंगे जो यहाँ पे ज्योमेट्री है वही इस मॉलिक्यूल की शेप भी है। ठीक है, ड्रॉ करिए इसको। तो दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो SnF3 के केस में ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल एंड इसके केस में द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम December 2012। अगेन यहाँ पे आपको वही, आपको देखो आप कॉमन मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं एंड दे हैव आस्क्ड यू कि इनमें से किन का प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक XeO3 देखिए, इसका तो आपको पता होना चाहिए अभी तक कि इसकी शेप जो है वो होती है इस तरह से। तो दे आर आस्किंग अबाउट द स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर, सो मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट द शेप। सो दिस शेप इज पिरामिडल। तो अगर XeO3 प्लेनर नहीं है तो यहाँ से हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, तो उस हिसाब से आप देखो तो D इज़ द करेक्ट आंसर। इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। और अगर आप स्ट्रक्चर ही देखना चाहते हैं तो SO3 का मैंने आपको भी बताया ही था स्ट्रक्चर कि इट इज़ लाइक दिस विच इज़ ट्राइगोनल प्लेनर। नाउ सिमिलरली कार्बोनेट के लिए अगर हम देखें तो वी कैन अगेन अप्लाई द स्टेरिक नंबर रूल, यानी कि हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड कार्बन है 4 प्लस मोनोवेलेंट स्पीशीज कुछ नहीं है, एनायनिक चार्ज 2 है, तो विल ऐड दिस, सो दिस विल बी 6/2 इक्वल्स टू 3। तो 3 अगर स्टेरिक नंबर है सो दैट कॉल्स फॉर ट्राइगोनल प्लेनर। इसको हम बना भी सकते हैं, सो इट इज़ लाइक दिस। सो यहाँ पे ज्योमेट्री जो है दैट इज इक्वल्स टू द शेप, दैट इज सेम। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें NO3 माइनस के लिए बनाना है, अगेन वी कैन अप्लाई द स्टेरिक नंबर रूल, यानी कि हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड नाइट्रोजन इज 5, मोनोवेलेंट स्पीशीज कुछ नहीं है, प्लस 1, सो दिस इज अगेन 3। नाउ 3 कॉल्स फॉर अगेन द सेम टाइप ऑफ द शेप, सो द करेक्ट आंसर इज D. Now next question has been asked in December 2019. The question is species for which the shapes can be predicted by VSEPR theory. यानी कि ये पूछ रहे हैं कि ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से किन की शेप आप VSEPR थ्योरी से प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो उसका मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग यू अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ VSEPR थ्योरी। Now one of the limitation of VSEPR theory is that it cannot be used to predict the shapes of transition metal compounds। तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स होंगे उनकी शेप हम VSEPR थ्योरी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यू कैन सी हेयर कि हम इनकी शेप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसकी भी शेप मैंने आपको भी पीछे एग्जांपल दिखाया था कि इसकी भी शेप हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट सिंस इट्स अ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हम इसकी शेप VSEPR से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका 2, यानी कि B और C जो हैं उनकी शेप हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2019 जून, आपको मैच करना है यहाँ पे मॉलिक्यूल को विद द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अब XeO3 अगेन देखो आप कितनी बार ये रिपीट हो रहा है, तो ये तो मैं पता ही है सबसे पहली चीज़ कि इसकी शेप इस तरह से है and this shape is called as pyramidal shape. Okay, so we can match XeO3 with this. एक सबसे पहली चीज़ हमें पता चल गई। उसके बाद next we have to see F XeO OSO2 F। तो ये जो है अगर आप इसको देखो इट इज़ सिमिलर टू XeF2। ठीक है, इसमें आप देखोगे एक फ्लोरीन की जगह पे दे हैव रिप्लेस्ड इट विद दिस ग्रुप। सो जैसे XeF2 की अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो हम इसको बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ द एफ्स यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा OSO3F और यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा हमारे पास फ्लोरीन। सो अगेन दिस इज गोइंग टू हैव द लीनियर शेप। सो दिस इज लीनियर इन
शेप। नेक्स्ट देखते हैं हम FXENSO2F का ट्वाइस। It is again similar to XeF2 molecule. Again this molecule will also be linear in shape. बट आप क्वेश्चन में देखोगे आपको एक ही लीनियर दिया हुआ है, दो लीनियर नहीं दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस मिसिंग है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ जो ऑप्शंस दी हुई होंगी उसमें यू हैव टू चेक। ठीक है, तो इट बिकम्स क्रिटिकल कि हम XeOF2 की शेप सही निकालें। नाउ XeOF2 के लिए अगर आप देखोगे तो इसकी जो शेप बनेगी इट विल बी लाइक दिस, which is called as the T shape. So ये जो molecule है this is having the T shape. Now this molecule and this molecule they both are linear, so you have to check कि आपको जो options दी हुई हैं उनमें से कौन सा option आपकी बाकी options को correct predict कर रहा है। Now this question is again a recently asked question in November 2020. Now in November 2020 this question was asked कि as per the VSEPR theory the shapes of this are what। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो इसमें हम कार्बोनेट की शेप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड इफ़ यू रिमेंबर वी हैव प्रिडिक्टेड दिस शेप फॉर कार्बोनेट विच इज़ ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो यानी कि हमें मिडिल एक शेप पता है, तो यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर ये ठीक है, ये ट्राइगोनल पिरामिड गलत है, ये ट्राइगोनल प्लेनर ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है। तो दो ऑप्शंस तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गई, तो आउट ऑफ द टू वी हैव टू सेलेक्ट। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल ये दोनों हैं, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो इनकी शेप भी एक जैसी होगी, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे सल्फाइड के लिए तो वी विल अप्लाई द स्टेरिक नंबर रूल। स्टेरिक नंबर रूल क्या कहता है? हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम, यानी कि 6। नाउ मोनोवेलेंट स्पीशीज यहाँ पे कुछ नहीं है, बट आपको चार्ज दिया -2 तो हम उसको ऐड कर देंगे, सो दिस विल बी 4। नाउ 4 मीन्स दैट द ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। बट अगर हम इसका अरेंजमेंट देखें तो दिस अरेंजमेंट विल बी लाइक दिस। तो अगर हम इसकी शेप की बात करें तो शेप इज गोइंग टू बी पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल या पिरामिडल। तो आप देखो इन दोनों ही ऑप्शंस में आपको SO32- की शेप क्या दी हुई है? ट्राइगोनल पिरामिडल। नाउ लेट अस सी फॉर BrF4-, अप्लाई द स्टेरिक नंबर रूल, दैट विल बी हाफ ऑफ ब्रोमीन के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7, मोनोवेलेंट स्पीशीज 4, एक माइनस चार्ज है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, सो दिस विल बी 12/2 इक्वल्स टू 6। 6 का मतलब है कि द ज्योमेट्री हेयर इज ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का यहाँ पे अरेंजमेंट देखिए, इट विल बी लाइक दिस, दिस एंड दिस। द एक्सियल पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड विद द लोन पेयर्स। तो ये जो शेप है, इसकी शेप, इस शेप को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस द सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे IIT JAM है, देन वी हैव दिस CUC सेट एग्ज़ाम है, देन जितने भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं लाइक ऑफ BHU DU है ना, जितने भी आपके MSc एंट्रेंसेस हैं, अपार्ट देन गेट का एग्ज़ाम है, या अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देखोगे तो आप हर एग्ज़ाम में देखोगे कि जो VSEPR थ्योरी है इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। सो दिस VSEPR थ्योरी टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड जस्ट अप्लाइंग द 2 ट्रिक्स, 2 ट्रिक बताइए आपको, दोनों में से आप कोई भी ट्रिक यूज़ कीजिए एंड यू कैन प्रिडिक्ट द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द molecule. I hope you like this video, and now please let me know on what topic you would like to have more videos so that I can make those videos on priority basis. Thank you.